Hello students, good morning. Now welcome in online class of English subject. Student, today we shall discuss the remaining four questions which are there in this chapter. We discussed first two questions in last video. Now question number third, how have the people of the community helped one another? First part of this question is like that. Here we can say that the people of the community of that village Kalikunda, which was there in Orissa, all the people helped one another. We can take up the example of young people as well as elder. Those help other people by bringing food, by bringing wood for burning fire. Such type of work was done by young people and elder people. Young and elder were involved in that work. Secondly, women who were there, those women took the charge of caring the little children, and they also look after all the children who were there in that on that place. We can take up the example of little children. They also do their work because Parsan told them to lie down on the ground by keeping the empty vessel on their bellies, on their stomachs. So, whatever the duty assigned to them, they also perform their duty in proper way because they had to give the signal, they have to pass the message to the people who were there in helicopter which was flying over their head in the sky, and same thing was understood by the people in that helicopter which was there in the sky, and people through the food packets and water bottles, bed sheets, blankets, etc. for those people by watching those little children who were keeping empty vessel, empty utensils on their stomach. So every person in that community helped each other. Second part, what role do the women of Kalikunda play during these days? I have told you that women played the role of looking after and keeping care of little children and give love and affection to them who had lost their parents. औरतों का काम क्या था? जो बच्चे अनाथ हो चुके थे उनकी देख रेख करना और उनको पेरेंट्स जैसा प्यार स्नेह ये देना, ये औरतों के द्वारा ये ड्यूटी निभाई गई. Now next question, question number 4. Why do Prashant and other volunteers resist the plan? Here a word resist. Resist means, I have already told you while discussing the chapter, resist means to contradict, विरोध करना. तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रशांत और दूसरे जो वॉलंटियर्स साथी थे, वॉलंटियर मीन्स जो बगैर किसी स्वार्थ के निस्वार्थ सेवा कर रहे थे, उन्होंने गवर्नमेंट की जो प्लानिंग थी टू सेटअप इंस्टीट्यूशन, यानी इंस्टीट्यूशन सेटअप करने की, किसकी? फॉर ऑर्फन एंड विडोज. ऑर्फन और विडोज के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन सेटअप करने की जो प्लानिंग थी, उसका विरोध उन्होंने क्यों किया?
what alternative do they consider? Now, we can say that it was decided by government that separate institute should be there for orphan and widows. गवर्नमेंट की प्लानिंग थी कि ऑर्फन और विडो के लिए सेपरेट इंस्टीट्यूशन बने, अलग अलग संस्थाओं में वो रहें, एक जगह विडो, एक जगह ऑर्फन. बट प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर resist this planning of government because they think that if such type of situation will happen, then it will not be beneficial for both type of creature, both type of being. दोनों तरह के जीवों के लिए, यानी ये कहिए ऑर्फन और विडो के लिए, ऑर्फन जो अनाथ बच्चे थे और विडो जो विधवा औरतें थी जिन्होंने अपने हस्बैंड खो दिए थे उस फ्लड में, और ऑर्फन का मतलब जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स खो दिए थे, उनके पेरेंट्स गायब हो गए थे या मर गए थे. तो दोनों के लिए ये लाभदायक नहीं था ये प्लानिंग, क्योंकि पर्सन एंड अदर वॉलंटियर थॉट दैट इफ बोथ ऑफ देम वुड बी केप्ट इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन देन widow will feel loneliness. तो प्रशांत और दूसरे साथी सोचते थे कि अगर इनको अलग अलग रखा तो विडो जो है वो अकेलापन महसूस करेंगे, एंड दे वुड हैव द नेगेटिव आइडिया इन देयर माइंड रिलेटेड टू देयर सेपरेशन फ्रॉम देयर हस्बैंड एट दैट टाइम, एट दैट एज. दूसरा प्रशांत ये भी सोचता था कि वो एक स्टिग्मा मीन्स कलंक अपने क्या नाम है ऊपर सोचते रहेंगे और अकेलापन वो महसूस करेंगे यदि उनको बच्चों से दूर रखा, कम्युनिटी से दूर रखा, समाज से दूर रखा. सेकेंडली दे आल्सो थॉट दैट इफ ऑर्फन वुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द विडो, फ्रॉम द अदर कम्युनिटी, देन दे वुड नॉट गेट द मदरली लव and they would also face some other problems. And Prashant and other volunteer thought that children would grow without love and affection, बगैर प्यार और स्नेह के वो अपने जीवन की शुरुआत करेंगे. बचपन में ही उनके जीवन से प्यार और स्नेह गायब हो जाएगा, और औरतें जो है वो अकेलापन महसूस करेंगी और कलंक अपने क्या नाम है लाइफ में समझेंगे कि हम कितनी भागी हैं कि इस एज में हम अपने हस्बैंड से, अपने लाइफ पार्टनर से जुदा हुई. तो इसलिए उन्होंने विरोध किया इस बात का. दूसरा जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो क्या है, व्हाट अल्टरनेटिव डू दे कंसीडर. उन्होंने क्या अल्टरनेटिव वो सोचते हैं. दे कंसीडर द अदर अल्टरनेट दैट बोथ ऑफ देम शुड बी केप्ट इन their own community, so that women could give love and affection and care to little children, and children could get motherly love from those widows, and widow could not feel any stigma in their mind related to the departure of their husband. तो दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद था एक ही जगह पर रहना. विधवाओं को तो जो है अकेलापन उनका दूर हो जाता, बच्चों की देख रेख करते उसमें उनका जो दुख था वो कम हो सकता था, और अनाथ बच्चों को जो है अपना मदरली लव, जो माँ का प्यार होता है, वो विधवाओं के द्वारा
दिए गए प्यार से उसकी पूर्ति हो सकती थी। तो इसलिए ये प्रशांत की जो सोच थी, वट एवर द आइडिया ऑफ प्रशांत, दैट वॉज राइट एट इट्स ओन प्लेस, अपनी जगह विचार उनका सही था। डू यू थिंक प्रशांत इज अ गुड लीडर? क्या आप समझते हैं कि प्रशांत जो है एक अच्छा लीडर है? वी थिंक प्रशांत इज अ गुड लीडर बिकॉज ही हैड ऑल द क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। अंडर हिज कमांड he could be able to provide food to the people who were there in that shelter, in that Red Cross shelter. रेड क्रॉस के शेल्टर में जितने भी लोग थे उनके लिए वो भोजन का इंतजाम कर पाया। He could also give the clean environment to those people who were living there without paying any attention towards cleanliness campaign। जो लोग वहाँ रह रहे थे वो गंदगी में रह रहे थे, इसलिए प्रशांत जो है उसने अपनी लीडरशिप में दूसरे क्या नाम है यंग पीपल को साथ लगाया और दूसरे एल्डर को साथ लगाया और उस जगह की सफाई की। तो हम कह सकते हैं कि प्रशांत में जो है लीडरशिप की सभी क्वालिटी थी, इसलिए हम उसको एक अच्छा लीडर मानते हैं। सेकंड पार्ट है, डू यू थिंक द यंग पीपल कैन गेट टुगेदर? क्या आप ये समझते हैं कि युवा लोग जो है वो क्या इकट्ठा आ सकते हैं? टू हेल्प पीपल, लोगों की मदद करने के लिए ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़। नेचुरल कैलेमिटीज़ का मतलब प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा जैसे फ्लड है या अर्थक्वेक है, तो क्या उस समय यंग पीपल इकट्ठा हो सकते हैं? वी कैन से दैट यंग पीपल कैन हेल्प अदर पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़। प्राकृतिक आपदा के समय युवा लोग जो है दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं, आ सकते हैं। एंड सच टाइप ऑफ सिचुएशन व्हेन हैपन at any time due to bad luck, then it is the young people as well as old people as well as we can say women and children, all the people come close to each other, सभी लोग एक दूसरे के साथ आते हैं। and by joining hand they help those people who are there in form of victim, जो शिकार होते हैं अर्थक्वेक का या फ्लड का, जो व्यक्ति पीड़ित हैं उनके आगे आकर वो मदद भी करते हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, युवा भी होते हैं, औरतें भी होते हैं। वी कैन टेक अप द एग्जाम्पल ऑफ earthquake which was there in Orissa. At that time all the people gave too much donation to the government of we can say Gujarat as well as central government, so that central government could provide help to the state government. So in such type of situation people donate directly in Prime Minister relief fund and other relief fund, they give their donation directly indirectly। सब लोग जो है वो राहत कार्य के लिए जो अकाउंट नंबर दिए होते हैं उनमें कोई ना कोई डोनेशन धन के रूप में या डायरेक्टली जो है वहाँ जाकर भोजन के पैकेट प्रोवाइड करवाते हैं, कपड़े देते हैं, बेड शीट देते हैं, ब्लैंकेट देते हैं, मेडिसिन देते हैं। सो सच टाइप ऑफ हेल्प इज गिवन बाय पीपल सो दैट whatever the loss which take place due to natural calamity that could be minimized by the people, ताकि लोगों के द्वारा जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जा सके, हानि को कुछ कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6, टेल एंड टॉक अबाउट द preparedness of the
कम्युनिटी फॉर अ नेचुरल कैलामिटीज, यानी प्राकृतिक आपदा के समय जो तैयारी होती है उसके बारे में कहता है। कुछ प्रकाश डालिए, समाज के द्वारा जो तैयारी है उसके बारे में बताइए। इट इज़ क्वाइट ट्रू दैट वी आर living in such type of earthquake prone area, as we are living in plainy area of Himalaya region, where we have the difficulty and problem of flood as well as earthquake. But it is also 100% truth that such type of natural calamity don't come by telling the people in advance. लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस प्रकार की जो नेचुरल कैलामिटी हैं वो लोगों को पहले ही अवगत करवा के नहीं आती। दे कम सडनली, ये चीज़ें अचानक आती हैं। बाढ़ आती है अचानक आती है, अर्थक्वेक आता है अचानक आता है, वोल्केनो एरप्शन होता है वो अचानक होता है। लेकिन हमारे यहाँ वोल्केनो एरप्शन की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ अर्थक्वेक की है, भूकंप की है। तो वो किसी को बताए बगैर ही आता है, ये पूर्ण रूप से सच्चाई है। कोई उसके बारे में नहीं जानता कि किस समय अर्थक्वेक को आना है। एंड वी कांट डू एनीथिंग बट वी कैन मिनिमाइज द लॉस ऑफ दैट अर्थक्वेक बाय आवर एफर्ट्स, बाय आवर हेल्प। हम उसकी पूरी जानकारी हमें नहीं होती, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते अर्थक्वेक को। जिस अर्थक्वेक को आना है तो आना ही है, उसको टाला नहीं जा सकता। लेकिन जो अर्थक्वेक के कारण लॉस है उसको कम किया जा सकता है कुछ हमारी तरफ से एफर्ट करके। और वो एफर्ट क्या होते हैं कि पीपल ऑफ सच एरिया शुड मेक वुडन हाउसेस। इस प्रकार के घरों क्या नाम है, इस प्रकार के एरिया में रहने वाले लोग जो है वो वुडन हाउस बनाएं, लकड़ी के घर, ताकि अगर घर गिरता है तो वो कम नुकसान लोगों को पहुंचाए। सेकेंडली, ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू द पीपल that they should come out from their houses in such type of bad condition, in such type of earthquake। यानी अर्थक्वेक के समय, भूकंप के समय लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि वो घरों से बाहर आ जाएं, घरों को खाली कर दें। एंड दे शुड टेक शेल्टर इन ओपन ड्यूरिंग दैट अर्थक्वेक पीरियड। और भूकंप के समय के दौरान, क्योंकि अर्थक्वेक एक बार आने के बाद जो है वो कई दिनों तक दोबारा आने के चांस होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए लोगों को घर से बाहर रहने की ज़रूरत होती है। एंड आफ्टर डिजास्टर पीपल शुड कोऑपरेट विद ईच अदर एंड दे शुड हेल्प द विक्टिम्स, दे शुड हेल्प द अफेक्टेड पीपल बिकॉज ऑफ सच टाइप ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़। इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे पीड़ित परिवारों को, उनसे पीड़ित लोगों को हम कुछ ना कुछ सुविधा दें अपने स्तर पर, सरकार के स्तर पर, ताकि उनके जो अक्सती हुई है, उनकी जो हानि हुई है जान और माल की, उस हानि को कुछ कम किया जा सके। सो दिस वाज चैप्टर 6। In next lecture we shall take up our next lesson. Okay, thank you.